Hi guys, welcome back to the next session. You are with me Arun Sharma, and this is How to Crack Cat 99 with 99 percentile in Cat, How to Crack It. And I'm taking a session on the Unacademy Catalyst channel. And I hope you know about me. I'm an author with McGraw Hill. I've been writing books for over 20 years now for various exams. Mostly, I mean, most of my books are on the cat space, definitely. But I also write books for UPSC, etc. Mostly on aptitude, of course. And my book Quantitative Aptitude for CAT, Data Interpretation for CAT, Logical Reasoning for CAT, and also Verbal Ability Reading Comprehension for CAT, which I've written in sync with Meenakshi Upadhyay ma'am. So these books, I'm quite sure most of you would have at least been aware of, if you're even if you're not using it. This question is something which a lot of people ask me all the time. Ki how do I score 99 percentile in CAT? 99 percentile, that magic number, that magic figure. And I often ask people when they start preparing, जब बहुत लोग preparation start करते हैं तो मैं उनसे ये पूछता हूँ ये बात. I ask them this question कि do you think you're going to get 99? मतलब what do you think कि तुमको what do you think is your base level? How much do you think you will get? उस कॉन्टेक्स्ट में दो दो क्वेश्चन आते हैं दिमाग में. जो जो मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, पीपल स्टार्टिंग ऑफ और पीपल हु कम टू आस्क मी और टेक माई एडवाइस ऑन कैट प्रिपरेशन. तो दो तरह के लोग होते हैं. एक तो रिपीटर्स होते हैं, ऑफ कोर्स 10-20% पीपल हु टेक द कैट एवरी ईयर और रिपीटर्स. सो आई डू आस्क देम दिस क्वेश्चन, कितना परसेंटाइल है. तो समबडी कम्स एंड सेज आई गॉट 88 परसेंटाइल लास्ट ईयर, और मेरे को इस साल 99 लाना है. सो आई वांट टू प्रिपेयर and I want your help to take to get access to this thing. तो ये question. And the other, of course, is people who are uh, not in any not taken the CAT, and they are going for the first attempt. They have वो belief कि मेरे को इतना आ जाना चाहिए. तुमने अपने फ्रेंड्स को देखा है, अपने सीनियर्स को देखा है, अपने अपने एल्डर ब्रदर एक्सेट्रा को देखा होगा, एंड नेबर्स को देखा होगा कि दे टू कैट, उनको इतना आया. देन यू स्टार्ट गेटिंग दैट फील कि उसको इतना आ जाता है, मेरे जैसे बंदे को इतना आता है, तो पास्ट में तो मेरे को इतना आ जाना चाहिए. सो कितना आ जाना चाहिए और कितना आना है, हाउ मच आई कैन गेट easily and how much I need to get, इसके बीच का journey is the journey you need to undertake in preparation. So before I go ahead with that, just wanted to get through a couple of promotions. This is the Unacademy Plus batches which are coming up. 24th April को we just started a score booster batch 3.0, as you can see on this side. और ये दीपिका अवस्थी, उदित सैनी, अजिंक्य चोपड़े and Dr. Kiran Dele. I'm not sure who's doing what subject in this batch, but I'm not aware of each of these teachers backgrounds कि कौन क्या पढ़ाता है. But I think they are doing this 24th April batch, and 20th April batch again Deepika Avasti, Suneet Khambad and Ravi Kumar are taking, and this is the round the clock batch 2 for CAT 21. And then first May, of course, Legion batch 3 for CAT 2021. Lokesh Agarwal is taking maths in that. Yours truly, me, Arun Sharma, I am taking a complete course in DI in this, starting in May. And this batch is starting on 1st May. And Abhilasha Swaroop is taking a course on verbal and verbal ability and reading comprehension in this. So you can enroll for these batches, and and you can enroll for Unacademy Plus basically. और Unacademy Plus पे enroll करने के लिए you can use my promo code. The promo code, the latest promo code I've been given is Sharma Cat Life. You can use this promo code to get a 10% discount on your existing fees. जो भी आपका फीस दिखा रहा है, ये प्रोमो कोड डाल दोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा. एंड ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दिस प्रोमो कोड ऑल्सो फॉर सम ऑफ द फ्री प्रीमियम सर्विसेज जो लॉगिन बेस्ड है, तो वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के. एंड so coming back to this issue कि how do you score 99 percentile in CAT. Of course you'll have to build it down to, when we are trying to think about how to score 99 percentile in CAT, तो हम लोग को उसको build down करना पड़ेगा into quants, data interpretation, logical reasoning and verbal ability, reading comprehension. We'll have to break it down into these three areas. But let's just understand. First thing you need to realize when you're talking about 99 percentile score, the first thing you need to realize is that there's a percentage
percentile correlation in the CAT. और परसेंटेज परसेंटाइल कोरिलेशन क्या है कि नॉर्मली वो जो 3 आवर का एग्ज़ाम होता है, 3 आवर्स 180 मिनट्स, ये कैट का पैटर्न रहा है बिटवीन 2016 आई थिंक 16 से 19 के बीच में. ये स्टेबल पैटर्न था, बट ऑफ कोर्स कोरोना वायरस has disrupted so many things and it has taken it down to 2 hours 120 minutes paper in CAT 2020. And on top of that you also have the number of questions. So this is a 100 question exam having 300 marks. This is a 100 question exam having 300 marks, and these 300 marks are divided as 102 marks in VA, 34 questions VRC, 32 questions in DILR, 96 marks, and 102 marks in quantitative aptitude, 34 questions. This was replaced by the CAT 2020 pattern, or CAT 2020 pattern में the total questions were 76, और 76 questions में 228 marks थे. और इस 228 marks में से the breakdown was 26 questions in verbal. This is verbal. The first section is always verbal. और CAT में you don't have an option. You have to go in that order. जब से ऑनलाइन हुआ है CAT तो वो ऑर्डर डिफाइन कर देता है. पहले क्या था कि इट वाज ओपन, आप जो सेक्शन देना चाहते हो वो दे सकते हो, और जितना टाइम देना चाहते हो वो भी दे सकते हो. सेक्शन टाइम लिमिट भी नहीं था. अब वो लोग क्या करते हैं कि तुमको एक ये सेक्शन, जैसे ये वाले पेपर में 3 घंटे के पेपर में 1 घंटा ईच सेक्शन पे दे देता है, और 2 घंटे के पेपर में दे गिवन 40 मिनट्स ऑन ईच सेक्शन. ये 40 मिनट ले लो, 26 क्वेश्चन, 78 मार्क्स in verbal, 24 questions, 72 marks in DILR, and 26 questions, 78 marks in quants. So this is the basic breakup of this of the exam. And when you look at this breakup, so what I mean, why I'm telling you these breakups is because when we talk about 99 percentile score, तो 99 percentile अलग अलग लेवल्स पे होता है. मतलब यहाँ पे टिपिकल जो सेटल डाउन पैटर्न था उसमें 53 to 54% नेट स्कोर पे, अराउंड 54% नेट स्कोर पे 99 percentile आता था. दैट मीन्स यू हैड टू स्कोर out of 300 marks, you have to score around 155 to 160. थोड़ा बहुत प्लस माइनस 5 मार्क्स होता था, बट ये 155 to 160 रेंज हिट कर जाओ तो तुमको 99 परसेंटाइल आ जाएगा यहाँ पे. तो 54% के आसपास ये परसेंटेज स्कोर आता है. Now on this front, on the other front, when you're talking about this exam, you will see that यहाँ पे 101 मार्क्स के आसपास 99 परसेंटाइल आया था. 101 मार्क्स पे 99 परसेंट आया था, विच इज़ आउट ऑफ 228 अगर कैलकुलेट करोगे तो दिस इज बेयरली 44%. ये बहुत बड़ा डिविएशन था between the percentage of marks required to score a 99 percentile. So 100 marks पे तुम्हारा 99 परसेंटाइल था. तो तुमको अगर तुमको 99 परसेंटाइल चाहिए तो 3 घंटे एग्जाम में तुमको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि 155 से 160 क्वेश्चन मार्क्स कैसे लाओ. इन अ 3 hour एग्जाम यू विल हैव टू डिफाइन कि हाउ डू यू गेट 155 to 160 marks. And a 2 hour exam, you will have to identify or define for yourself कि how do you get to 100 or 101 marks? How do you get to 44%? That's the challenge. Now, why a lot of people ask me this question कि ऐसा क्यों हुआ? Normally तो इतना फर्क नहीं होना चाहिए, है ना? तो ऐसा क्यों हुआ? Why did this happen? Let me just open a fresh page here for you. And according to me, there are two reasons why this happened. देखो हुआ क्या कि जब 3 घंटे का पेपर 2 घंटे के पेपर में शिफ्ट कर जाता है तो देयर इज अ 33% ड्रॉप
इन टाइम, है ना। और जब 300 मार्क का पेपर 228 मार्क का पेपर बन जाता है, तो देयर इज अ 24% ड्रॉप इन मार्क्स, इन टोटल मार्क्स, राइट। सो यू वुड एक्सपेक्ट दैट अगर 155 160 155 160 के बीच में अगर स्कोर 3 घंटे के पेपर में आता है, तो अगर वैसा ही पेपर है तो मोर और लेस somewhere between 24% to 33%, because you got more marks available, right? So you can score a little bit faster. You got more choice available, right? So मतलब आप खुद देख लो ना, 100 क्वेश्चन तुमको 180 मिनट में करना है, और यहाँ पे तुमको 78 क्वेश्चन 120 मिनट्स में करना है, राइट। सो यू गॉट यू हैव, मतलब अगर 1.8 मिनट्स पर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लगाओगे, 1.8 मिनट्स पर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर लगाओगे, तो यहाँ पे करीब 65 क्वेश्चन ही होने चाहिए था, 66 क्वेश्चन ही होने चाहिए था। तो जब 78 क्वेश्चन उन्होंने दिया, तो क्वेश्चन का चॉइस बढ़ा दिया ना, ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए उन्होंने। सो द चॉइस वॉज मोर, सो दैट शुड मे बी लीड टू समवेयर बिटवीन अ 24 to 33% ड्रॉप इन द नेट स्कोर। लेकिन जब नेट स्कोर अगर 99 परसेंटाइल का 155 160 से 100 पे आया, तो ये एक्चुअली 37-38% ड्रॉप है नेट स्कोर में। तो दिस इज मोर ड्रॉप than expected in the net score for 99 percentile. And why I'm telling you this is because when you're preparing for this year's CAT, तो तुमको दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहला चीज़ ये ध्यान में रखना है कि तुमको अगस्त से पहले पता नहीं चलेगा कि 2 घंटे का एग्जाम है कि 3 घंटे एग्जाम है। द ओनली थिंग दैट विल डिफाइन इट, नाउ यू कैन वर्क ऑन प्रोबेबिलिटीज, बट प्रोबेबिलिटीज तो कुछ भी हो सकता है, राइट। इंडिया विन्स द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, और इंडिया डज नॉट विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप, और इंडिया विन्स द 2042 फुटबॉल वर्ल्ड कप, क्या क्या कुछ भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी तो किसी भी चीज़ का होता है। तो पॉसिबिलिटी दोनों चीज़ के हैं कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, 2 घंटे का हो सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी तुम एस्टिमेट कर सकते हो कि बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक सिचुएशन मे बी they'll only have a 2 hour exam, whatever they will have. Hopefully by November we should be ready for conduction of exams, etc. Things life will go back to normal after 2-3 month period. So ऐसा तो होने वाला है, but ultimately as I said, you have to be ready for both these exams. We don't know whether it will be a 2 hour exam or a 3 hour exam, तो हम लोग ये जानते नहीं हैं। तो तुमको जब तैयारी करनी है अभी से अगस्त सितंबर के बीच में, यू हैव टू प्रिपेयर एज इफ एनीथिंग कैन हैपन। इट कैन बी अ 2 hour exam or a 3 hour exam, and your preparation has to be on both. And when you are trying to focus on 99 percentile, you have to focus on understanding both the systems. तो why so there can be investigation of why this happened, ये क्यों गिरा, why was there a 37-38% drop in the overall net score value फॉर 99 परसेंटाइल। तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि 2 reasons एक्चुअली। एक तो DILR में स्कोरिंग वॉज डिफ़िकल्ट, सो स्कोरिंग रेट वॉज डिफ़िकल्ट। इट इज़ लाइक एक T20 मैच में एक बॉलर ने बड़ा अच्छा स्पेल कर दिया, 4 ओवर में रन ही नहीं बने, तो ऑब्वियसली रन कम बनेंगे ओवरऑल, है ना। सो DILR ने वही किया, बहुत अच्छा क्वालिटी का पेपर दिया, डिफ़िकल्ट पेपर दिया, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऑल्दो मेरे हिसाब से उतने डिफ़िकल्ट नहीं थे जितने लोग चिल्ला रहे थे एग्ज़ाम के बाद, लेकिन उस प्रेशर कुकर सिचुएशन में उसको हैंडल करना काफ़ी लोगों को बहुत मुश्किल लगा। सो बिकॉज ऑफ दैट they kind of left out on the DILR or missed out on the DILR scoring. So what happened, a lot of people did not score much in the DILR section. So this was one major reason. 40 मिनट में आपका स्कोरिंग नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली आपको ओवरऑल स्कोरिंग गिरेगा। बिकॉज वोबल में देखो, वोबल का क्या था, इसमें इंडिविजुअल, इफ यू गो ऑन अ सेक्शनल लेवल बेसिस, तो वोबल में द परसेंटाइल यू वुड गेट एट 65 मार्क्स in CAT 2019, you would get the same percentile in 40-42 marks in CAT 2020, approximately the same. So ये देखो तो करीब maybe 45 मार्क्स पे, तो ये देखो तो करीब 130 ड्रॉप है ना। 44-45 मार्क्स पे अगर तुमको सेम परसेंटाइल आ रहा है तो 1/3 ड्रॉप ही है। और क्वांट्स में भी वही हुआ, 65 मार्क्स पे जो स्कोर आ रहा था, 65 मार्क्स incidentally out of 100 is the 102 marks is the 99 percentile range.
So when you are talking about 40 minutes instead of 60 minutes, तो 65 मार्क्स should drop down to around 44 मार्क्स. तो क्वांट्स में भी वही हुआ, 44 मार्क्स अगर तुम लेके आते तो 99 परसेंटाइल के आसपास आ जाता तुम्हारा कैट 20 में, राइट, जबकि वो 65 मार्क का एग्जाम था, राइट. Given this breakdown, you will see that scoring was almost similar in quants and verbal, but DILR में the scoring was very haywire. People barely scored 10-15 marks in 40 minutes. So this was one reason. और दूसरा रीज़न वाई they could not score so much, जबकि DILR of CAT 20 अगर आप सेट टू सेट कंपेयर करोगे CAT 18 से CAT 17 से, तो you'll see that almost डिफिकल्टी लेवल सेम है दोनों का. तो in that context, what made the DILR even tougher was that जब 40 मिनट का पेपर है, 60 मिनट्स के पेपर में क्या है कि अगर आपका एक दो सेट खराब हुआ तो आपका रिकवरी टाइम अच्छा है. यहाँ पे रिकवरी टाइम नहीं था, बिकॉज आपका एक सेट खराब हुआ तो 10-12 मिनट निकल के आपका 28 मिनट बचे, देन यू स्टार्ट पैनिकिंग कि अगला सेट भी खराब होगा तो क्या होगा. वहाँ पे क्या था कि पहला सेट खराब भी हुआ तो 10-12 मिनट के बाद तुम्हारे पास 48 मिनट्स बचा हुआ है, तो यू कैन देन गो एग्रेसिव और यू कैन ट्राई टू डू समथिंग यू नो. So there is a lower recovery time available, which is another reason why this overall drop was higher than what it should have been, right? Otherwise paper में उतना ज़्यादा फर्क नहीं था between the two papers. So having said that, then when you're talking about 99 percentile and scoring 99 percentile, तो तुम्हारा चैलेंज दो हो जाता है कि 160 मार्क्स कैसे लाऊं मैं 300 मार्क के पेपर में, और 100 मार्क्स कैसे लाऊं मैं 228 मार्क के पेपर में, विच एवर पैटर्न हैपन्स. तो दोनों प्लान बना लेना चाहिए और प्रिपरेशन शुड बी ऑन बोथ प्लान्स. और जब तुम्हारा एग्ज़ाम में अनाउंस होगा कि ये करना ये एग्ज़ाम है, तो उस टाइम तुम फिर प्लान ए या प्लान बी पे चले जाना, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द एग्ज़ाम इज गोइंग टू बी, है ना. दिस इज व्हाट यू डू. सो 160 का ब्रेकअप क्या होता है? नाउ डिपेंड्स ऑन तुम्हारा क्या स्ट्रेंथ है क्या वीकनेस. तो व्हाट यू हैव टू डू टू स्टार्ट विथ इज ऑडिट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. और ऑडिट जब करोगे स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, जब स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ऑडिट करोगे 160 मार्क्स लाने के लिए, तो यू माइट बिलोंग टू वन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल. टिपिकली मैंने 4 तरह के लोग देखे हैं. तो खुद को पहले ऑडिट करो. एक ऐसे होते हैं जो वर्बल स्ट्रॉन्ग होता है और क्वांट्स वीक होता है, टाइप 1. दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो वर्बल वीक रहता है और क्वांट्स और लॉजिकल थिंकिंग क्वांटिटेटिव थिंकिंग स्ट्रांग होता है. तीसरे लोग ऐसे होते हैं जिनका दोनों स्ट्रांग होता है, वर्बल भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है वर्बल में सोचने में, और क्वांट्स भी ठीक है, उसमें भी सोचने में उतनी दिक्कत नहीं है. और चौथे लोग होते हैं जो इनका वर्बल वीक होता है और क्वांट्स वीक होता है. तो ये 4 तरह के लोग होते हैं, राइट. तो तुम देखो कि तुम टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो कि टाइप 3 हो कि टाइप 4 हो. और अगर तुम टाइप 1 हो, obviously the preparation strategy has to maximize the strengths and minimize the impact of the weakness, है ना. maximize your strengths and minimize the impact of your weakness. तुम अगर किसी let's say कोई strategically कुछ कर रहे हो, suppose you are a country and you are trying to develop the industrial policy of the country, तो तुम्हारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ये होगा कि तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, सपोज यू टॉक अबाउट इंडिया का स्ट्रेंथ इज मैन पावर एंड क्वालिफाइड मैन पावर एंड ट्रेनिबिलिटी, ट्रेनिंग नेटवर्क एक्सेट्रा. तो उन स्ट्रेंथ को अगर यूज़ करोगे, और वीकनेस शायद टेक्नोलॉजी होगा या जो भी है, कैपिटल पहले आजकल तो कम हो गया कैपिटल एज ए वीकनेस फॉर इंडिया, बट मे बी यू हैव दोज काइंड ऑफ वीकनेसेस ऑल्सो. सो उन वीकनेसेस को जब मिनिमाइज करोगे और स्ट्रेंथ्स पे प्ले करोगे तो यू गेट बेटर. सो फॉर पर्सन विद T1, his targets, now we are talking about 4 areas of problem solving. एक VRC होता है, एक DILR होता है, DI होता है, एक LR होता है और एक क्वांट्स होता है, राइट. तो वर्बल में obviously you will have to try to score well, और DILR सेक्शन में your focus should be on the LR first, strength in LR, right. And यहाँ पे you have to make sure that your weakness is minimized
by getting to a sort of a plateau where you can actually make sure that you do it. So a suggested way to get 160 marks for you in the three sections, verbal, DILR, एक सजेस्टेड रास्ता 160 मार्क्स लाने का, और कॉन्ट्स इज वर्बल में 65 to 70 टारगेट करो, DILR में अराउंड 40 के आसपास टारगेट करो. अब मैं 3 घंटे के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ. और क्वांट्स में करीब 40 to 50 टारगेट करो, 40 प्लस टारगेट करो. तो क्या होगा, तुम 70 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 150 में पहुँच जाओगे अगर तुम इसको पहुँच सकते हो, राइट. और ये 40 जो लाना है उसको LR के थ्रू ज़्यादा डिपेंड करो दैन ऑन DI. बिकॉज अगर तुम्हारा क्वांट्स वीक है तो बाय डिफ़ॉल्ट DI थोड़ा वीक रहेगा. बट ऐसा नहीं है कि तुम DI ठीक नहीं कर सकते हो. तो शायद तुम DI पे भी फोकस करके इसको, DI को नेगेटिव से स्ट्रेंथ बनाना पॉसिबल है, राइट. और जल्दी पॉसिबल है. कॉन्ट्स को भी पॉसिबल है, लेकिन कॉन्ट्स में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है टू मूव फ्रॉम इट बीइंग अ वीकनेस टू बीइंग अ स्ट्रेंथ. सो दिस विल बी योर टारगेट्स. और अगर तुमको इस पे टारगेट्स निकालने अपने 2 घंटे के एग्जाम में, तो इन टारगेट्स को करीब एनीवेयर बिटवीन 30 to 40% रिड्यूस कर दो, ठीक है. सो वर्बल में अगर तुम 20 मार्क्स रिड्यूस कर दो तो 49 पहुंच जाता है तुम्हारा. DILR में 30% रिड्यूस कर देते हो तो 28 हो जाता है. 9 क्वेश्चन सॉल्व करने 40 मिनट में, है ना. और इसके लिए 16 क्वेश्चन सही करना है. और क्वांट्स में अगर तुम 30% रिड्यूस कर दो तो 28 30 के आसपास आएगा. तुम 100 को आराम से क्रॉस कर जाओगे. अगर तुम्हारा उल्टा है तो फिर तुम क्वांट्स में 70 स्कोर करने की कोशिश करो. ये तुम्हारा पैटर्न रहना, टारगेट रहना चाहिए. और DILR में ये टारगेट सेटिंग करने के लिए ज़रूरी है. और उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा इस वीडियो में और अगले वीडियो में बताऊंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए आपका, हाउ शुड यू प्रिपेयर. तो लेकिन बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग, बिफोर यू क्रिएट स्ट्रैटेजी हाउ टू स्कोर 99 परसेंटाइल, उस स्ट्रैटेजी को प्रिपेयर करने से पहले तुम्हारे पास तुम्हारा यू शुड हैव योर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर ना. तो इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव अभी क्लियर कर दे रहा हूँ तुमको. तो इफ़ यू बिलोंग टू टाइप 2 काइंड ऑफ स्टूडेंट whose verbal is weak and quants is good, so plan a 70 plus in quants, plan a 40 plus in verbal in the 100 mark exam. I'm talking about 3 hours. As I told you, इसको 30 to 40% reduce कर देना if you're going for a 2 hour exam, ठीक है. और DILR में 40-45, DILR में you can actually target 45-50. तो एक्चुअली जिन लोगों का quants अच्छा होता है उनको एक एडवांटेज ये होता है, if you are more natural in quants, so you have an advantage कि your quants is good, your DILR is good, and LR में तुमको कोई disadvantage नहीं against a person who's got a strong verbal. So you can then target LR और कि LR भी अच्छा करूँगा मैं. तो obviously then you have got a better scope of scoring higher than somebody who's got verbal good. Of course, if you belong to somebody who's comfortable in verbal and quants, nothing like it. तब तुम्हारा टारगेट हो जाना चाहिए, how do you score 70 here, या 60 to 70 कर लो. यहाँ पे 60 भी चल जाएगा, इसमें भी 60 to 70 कर लो. DILR क्योंकि उतना स्कोरिंग नहीं होता है, इस पर टारगेट 45-50 रहेगा. तब तुम्हारा टारगेट करीब 170 प्लस का रहना चाहिए. 170 175 उस रेंज में स्कोर का टारगेट रहना चाहिए. आराम से कूली तुमको 99.5 99.6 के ऊपर जाएगा परसेंटाइल. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर तुम्हारा सब कुछ वीक है, क्वांट भी वीक है, वर्बल भी वीक है, तो LR को चेक करो. शायद LR तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो सकता है. यू माइट स्टार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑन LR. बहुत लोगों को मैंने देखा है लॉजिक ठीक रहता है, क्वांट्स खराब रहता है. तो क्वांट्स खराब है, लॉजिक ठीक है, तो लॉजिक पे प्ले करके LR को तो ठीक रख सकते हो. और क्वांट्स डेवलप करके साथ में DI डेवलप करके ऑफकोर्स डेवलप करना पड़ेगा. तब तुम्हारा स्टार्टिंग टारगेट्स रहेगा 40-45 इन वर्बल, 40-45 in quants, and maybe 30-35 in DILR. और तुमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि ये नंबर्स जो है ये 120 पे ले जाएंगे तुमको, 160 नहीं ले जाएंगे. These numbers will take you to 120. तो तुमको ये टारगेट ये करना पड़ेगा कि 120 का लेवल पे पहुंचने में, मॉक टेस्ट जब मैं स्टार्ट करूँ तो 120 मेरा अगस्त सितंबर तक पहुंच जाना चाहिए. तब तुम लास्ट 2 महीने में फाइट मार सकते हो. यू कैन फाइट टू गेट दिस 120 अप टू 160 और 150 प्लस. 150 प्लस हो जाएगा तो रिस्पेक्टेबल हो जाएगा तुम्हारा. यू डेफिनेटली 98.5 98.7
kind of percentile then, है ना? So in case you belong to the type 4 kind of student, then you focus on getting to those 45, 45, 35 kind of numbers by August, September. That should be a target. By August, September, I should be standing on this firm ground कि मेरे को इतना स्कोर करना आना चाहिए. And then you after that then you try to say कि okay अब मेरे पास 2 महीने बचे हैं, मेरे को 120 125 आ रहा है, फाइट मारते हैं, चलो let's fight to get the score to what it needs to be. तो ये टारगेट्स तुम्हारा रहेगा और इसको कैसे अचीव करना है, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट. बट बिफोर आई गो देयर, द अदर प्रमोशंस दैट आई एम सपोज टू डू, लेट अस फिनिश दैट. तो ये आइकॉनिक कैट 2021 का सब्सक्रिप्शन के बारे में पता होगा तुम लोग को. दिस इज समथिंग वेयर यू गेट अ पर्सनल मेंटर एंड यू गेट टेस्ट एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स and you also get OMITS preparation, which is all included in the Iconic CAT subscription. And of course, all benefits of Plus are included. And you get mentored by graduates from top B schools, like I am Calcutta, I am Bangalore, I am Ahmedabad, I am Bangalore, etc. इस तरह के graduates तुमको mentor करेंगे. So they'll help you understand what your scores are and they'll act like a mentor to you. And Unacademy learners crack CAT 20 with flying colors, as you can see. And then there's a weekly scholarship test, Unacademy Combat. This scholarship test is held every Sunday at 12 p.m. and it's it gives you a all India live leaderboard, and it's super fast and fun. Take it live to compete with the best, and you've got India's largest scholarship test. It's India's largest scholarship test for CAT, and you identify and improve your weak areas through detailed video solutions, etc. And win scholarships up to 55 lakhs. So इसको unlock करने के लिए you'll have to use a code. तो वो कोड वही वाला है जो मैंने दिखाया था, दिस वन, शर्मा कैट लाइफ, दैट्स द प्रोमो कोड फॉर इट, है ना. और द अदर एस्पेक्ट इज आस्क अ डाउट. तो आस्क अ डाउट फीचर है अनअकैडमी ऐप पे. ऑल्दो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ मत करना. हर क्वेश्चन जिसमें डाउट हो रहा है तुम अगर जाने लगोगे फॉर डाउट्स तो तुम थोड़ा सा यू आई मीन सी व्हाट हैपेंस इज, जब तुम प्रिपेयर करते हो ना तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है जिसको तुम असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो. तो कुछ पॉइंट तक असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक है. जैसे कोई चैप्टर में हो सकता है कोई स्टूडेंट को 25 क्वेश्चन का असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, किसी और स्टूडेंट को 50 क्वेश्चन का चाहिए होगा. तो एक डिफाइन चाहिए, तुमको डिफाइन करना पड़ेगा कि तुमको असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग कितना चाहिए. तो आस्क डाउट फीचर को ऐसे यूज़ करना कि चलो ठीक है मैं असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग 50 क्वेश्चन करूँगा या 100 क्वेश्चन करूँगा एक चैप्टर में. But then there has to be a question bank which you have to solve before you go to the CAT. There has to be a question bank which you have to solve without assistance. Because why it is so important is because एग्जाम के अंदर जब जाओगे तो तुमको डाउट होते हैं एग्जाम में. अच्छे लोगों को डाउट होते हैं. मैं सॉल्व करता हूँ, मैं 20 बार CAT दिया हूँ, मेरे को भी क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व करते समय, वोबल के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हर क्वेश्चन पे डाउट होता है कि ये आंसर होगा कि ये होता है. और फिर आपका सॉल्यूशन वही होता है. मतलब दैट्स हाउ CAT क्वेश्चंस आर. दे आर नॉट 2+2 4 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. तो उसका सॉल्विंग वही होता है कि तुम उस क्वेश्चन को देखो, उस क्वेश्चन को फील करो, यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, यू फील दैट क्वेश्चन, एंड बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग फीलिंग ऑफ दैट क्वेश्चन यू टेक अ कॉल कि शुड आई गो फॉर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. तो दैट फॉर ड्यूरिंग दैट balanced point where you are trying to think about how to उस बैलेंस पॉइंट पे जब तुम खुद को देख रहे हो कि कौन सा ऑप्शन चाहिए, ये चाहिए कि वो चाहिए, तो उस टाइम तुम्हारे पास ओनली वन थिंग इन योर हेड, और वो तुम्हारा पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है. और तुम्हारा पर्सनल डाउट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म अगर वर्क नहीं कर रहा है, इफ़ यू आर नॉट एनेबल्ड इट एंड इफ़ यू आर नॉट एक्टिवेटेड इट, तो व्हाट विल हैपन इज कि एग्जाम में जब डाउट होगा तो तुम्हारा यू विल बी लाइक अ डेड डक इन फ्रंट ऑफ अ कैनन, राइट. वो बोलते हैं ना तोप के सामने मुर्गी डाल दिया, वही रहोगे तुम. तो इसलिए before you go for the exam there has to be unassisted problem solving of at least 200 questions in every top question type and chapter. और तुम्हारा अगर तुम क्वेश्चन बैंक उठा, सपोज तुम मेरे बुक से सॉल्व कर रहे हो, यू सॉल्विंग फ्रॉम माई बुक, उसको अगर तुम असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में डाल रहे हो तो अनअसिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तुमको एक और रिसोर्स चाहिए, राइट. दैट्स वन ऑफ द रीजंस जब मैंने अपने फर्स्ट एडिशन लाया था बुक में तो मैंने उसमें क्वेश्चन बैंक दिया ही नहीं, सोल्यूशन दिया ही नहीं था. अभी मैं LOD 3 का सोल्यूशन नहीं देता हूँ बुक्स में. वाई डोंट गिव इट इज बिकॉज हु शुड सॉल्व LOD 3? Somebody who is trying to go beyond 99.3, 99.5, 99.7 percentile. और अगर वहाँ जाना है तुमको तो you have to come to unassisted problem solving.
असिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे अगर डिपेंडेंट रहोगे हमेशा, तो तुम 99.357 नहीं कर सकते, तुम 93-95% ला सकते हो, लेकिन यू कांट गो दैट एक्स्ट्रा डिस्टेंस. सो इसलिए अनअसिस्टेड प्रॉब्लम सॉल्विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो बट एट द सेम टाइम यू हैव एन ऑप्शन. मतलब ठीक है, मतलब इतना क्वेश्चन उठाया और उतने क्वेश्चन में तुमसे इतना सॉल्व हो गया, उसके बाद फाइट मार के इतना कर लिया, तो उसके बाद भी कुछ क्वेश्चन बच गए, तो देन बिफोर द एग्जाम जो क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुए उनको देख लो, उनसे पूछ लो, उनके बारे में पूछ लो. सो दिस इज अ ब्रिलियंट फीचर एक्चुअली देन, कि आज का डाउट डाल दो, फोटो ले लो या फिर आर्काइव से अपलोड कर दो, एंड गिव इट देयर एंड पुट इट ऑन द ऐप, एंड select the subject and upload it, and you get the solution within seconds. So chalo, that is all I wanted to give you for today's session. I hope you found this valuable. Use that promo code either to register for Unacademy Plus, Unacademy Iconic, CAT 21 batches, CAT 22 batches जिसके लिए करना है, and also uh, for accessing the Unacademy Combat. So thank you so much. I will wind up now. Bye bye.